Hello, everyone. Good afternoon, and a very warm welcome to all the participants, our panelists, and the entire TSPL team. Thank you all for joining today's very informative session, part of an exclusive Business Connect webinars, BizNext, the webinar series on growth for MSME technology and beyond. Today, we will be covering the topic how small businesses can benefit from e-invoicing under GST to ensure seamless business operations. During the session, we will address some of the major pain points and assist you in simplifying your business journey. With this, I would like to introduce our first speaker of the day, Mr. Mihir Javeri, VP Dev Information Technology Limited and Executive Council Member and Strategic Advisor, MSME Business Forum India. He is a senior management executive with a rapidly progressive career of 24 plus years. Over the years, Mihir has gained expertise and experience in numerous aspects of sales and business development, product management, data platforms, cloud computing, delivery, practice, human resource management, project and program management, pre-sales across various ITS verticals. He is also a certified international trainer and a certified digital transformation coach and has helped various companies in developing digital roadmaps. So let's welcome Mr. Mihir Javeri ji. Let's now hear the subject matter expert, all the things from him. Over to you, Mr. Mihir. Thank you very much. It gives me a great privilege for to be present here and to talk about. You're not audible, sir. Sorry. Are you able to hear me? Yes. Yes, sir. Please go ahead. Yeah. Okay. So thank you for giving me an opportunity here to come and present and talk about e-invoicing and e-invoicing कैसे MSME को help करेगा. Because I personally feel MSME is a very important segment in Indian economy because 80% of अपना जो भी companies है across India they fall into this MSME segment. And हर MSME का एक विजन होता है कि M से कैसे from micro how I become small, from small how I become medium, and from medium how I become enterprise. Yeah, and that is why all these new things which are coming we need to enable. तो आज मैं e-invoicing के बारे में बात करने वाला हूँ. I am going to share you my small presentation. Please let me know once you are able to see my screen. Yes, sir. Perfect. Yeah. So as once again, my name is Mihir Javeri. I am part of Executive Council and Strategy Advisor in MSME Business Forum. And I am also a Vice President in Dev Information Technology, which is a public listed company. Now before starting, what I'm going to cover आज के session में क्या cover करना? What is e-invoice? E-invoice generated by software on computer, is it an invoice? Whether invoice generated in central server is an invoice. E-invoice का does it generation of invoice from central portal of tax department? क्योंकि ये सब various questions रहता है अपने mind में. So I'll try to जितना हो सके कि मैं आपको ये सब cover करूँगा. फिर इनवॉइस जनरेटेड बाय ईच सॉफ्टवेयर कैसे लुक रहेगा, अगर वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, बट दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अनदर सिस्टम, तो फिर वो इनवॉइस का क्या है, एग्जांपल्स कैसे रहेगा, फिर क्या हाउ डू यू गो अहेड एंड प्रोसीड, या जीएसटी के अंदर कैसे रहेगा, बिकॉज अभी क्या है कि रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस डेटा इन जीएसटी रिटर्न और ई वे बिल में कैसे आएगा, डिफरेंट फॉर्मेट क्या है, टैक्स पेयर को कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 होगा एंड वो ई वे बिल होगा, देन हाउ डू यू वर्क अक्रॉस इट. फिर अभी जो हम लोग एवरीवन इज यूजिंग, अभी क्या अपने पास सिस्टम नहीं रहता है, तो क्या होता है कि मैनुअल एरर बहुत आ जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए. फिर उसमें क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट को भी और एक चैलेंज अभी बहुत आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेक इनवॉइसेस आ रहे हैं जो जीएसटी सिस्टम में आ रहे हैं. सो ये सब है, इसके ऊपर ही नो व्हाई दिस ई इनवॉइसिंग हैज कम इनटू द पिक्चर. या तो अभी कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में कैसे होता है ट्रांजैक्शन, सप्लायर है, बायर है, सप्लायर इश्यूज द इनवॉइस, गोस टू द बायर. ये सिंपल है फॉर्मेट है. एवरी कंपनी डज इट इन अ डिफरेंट वे, कोई पेपर में करता है, कोई मैनुअल करता है, कोका के ईमेल्स में करता है, कोका के कुछ सिस्टम रहेगा, टैली रहेगा, एसएपी रहेगा, ओरेकल रहेगा, कोई छोटी सी सिस्टम रहेगा, तो उसमें से लेके बाय. तो दिस इज हाउ ट्रेडिशनली यूज्ड टू हैपन. अभी ये सब ठीक था, लेकिन इसमें क्या था कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्या क्या एलिमेंट्स को कैप्चर करना है इनवॉइस में वो नहीं था. इसके लिए दैट इज वेयर द गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द पॉलिसीज एंड स्टार्टेड थिंकिंग हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज ऑल ऑफ दिस. या
तो क्या होता है तो कि एज मैंने अभी आपको बोला कि ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इनवॉइसिंग रे सब रहता है। करेक्ट। अभी सब सॉफ्टवेयर कंपनीज रहते हैं तो उनके उनके सिस्टम से बाहर से एक इनवॉइस आ जाता है। फिर क्या होता है कि 100 ऑफ अपने अपने जीएसटी सिस्टम भी अभी आ गया है। पहले क्या जीएसटी सिस्टम नहीं था, अभी लास्ट 4-5 ईयर से अभी जीएसटी सिस्टम भी आ गया। जीएसटी सिस्टम शुड बी एबल टू रीड जो भी इनवॉइस आता है बाहर। अभी वहां पे आज के तारीख में चैलेंज रहता था। तो नो, जब अभी जीएसटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है तो देन यू नीड टू कम आउट विद अ स्ट्रक्चर्ड एक इनवॉइस का फॉर्मेट होना चाहिए जहां से वो जीएसटी सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। फिर जो मैंने आपको एक सॉल्यूशन अभी बताया था कि सब कंपनी है ना अलग अलग फॉर्मेट से इनवॉइसिंग करते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ही इनवॉइस डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तभी ऐसे आएगा तो जीएसटी भी सिस्टम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और नहीं तो अपना भी सॉफ्टवेयर है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे इसको रीड कर सकते हैं। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द स्टैंडर्डाइजेशन बिकेम द की एक्चुअली। तो स्टैंडर्डाइजेशन की हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेट लेके आए। ये सब इनवॉइसिंग कौन से स्टैंडर्ड में रहेगा, कैसे डेटा अलाइन होगा, क्या मिनिमम डेटा चाहिए, व्हाट आर दोस 30 मैंडेटरी फील्ड्स। क्या कि अभी ई इनवॉइसिंग में मिनिमम 30 मैंडेटरी फील्ड्स आ गया है जो मिनिमम वो इंफॉर्मेशन अपने को कैप्चर करना है। पहले 50 था, अभी वो फिर बहुत सारे फीडबैक आए एमएसएमई से, इंडस्ट्री से आए, तो वो 50 का 30 हो गया। तो अभी 30 मिनिमम की फील्ड्स को कैप्चर करना पड़ेगा। वी कैन कैप्चर मोर इंफॉर्मेशन बट मिनिमम दैट 30 फील्ड्स को तो कैप्चर करना पड़ेगा। नाउ नाउ आई आपको बैकग्राउंड दे दिया। अभी इसके लिए ई इनवॉइसिंग आ रहा है क्योंकि ई इनवॉइसिंग कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया में भी नहीं है, सब बाहर के कंट्री में भी सब जगह पे हो रहा है। अभी फ्रांस ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, अपने जैसे छोटी इकोनॉमी ले लीजिए, ब्राजील, चाइना, सब में अभी ई इनवॉइसिंग आके कॉन्सेप्ट आ गया है। आ गया बिकॉज इसमें टू पार्ट्स है। एक तो क्या है, जनरेटिंग द इनवॉइस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे हम लोगों ने आपको अभी पहले बताया। तो क्या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम वो उसको रीड कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या होता है कि वो अभी एक सेंट्रल सिस्टम में चला जाएगा। जो अभी आपको प्रोडक्ट और डेमो जो सेकंड हाफ में राकेश भाई दिखाएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल सिस्टम में ई इनवॉइसिंग आ जाएगा। तो वहां पे भी कैसे सेम फॉर्मेट में रहेगा। अब और थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिखा कि अभी ये मैनुअल एंट्री, डेटा एंट्री चला जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि मैनुअल डेटा एंट्री हो रहा था। अभी मैनुअल डेटा एंट्री होने में वहां पे चांसेस ऑफ एरर ज्यादा थे। दैट इज व्हाट पास्ट डेटा दिखा रहे थे कि बहुत सारी कंपनीज में जो आ रहे थे, एक फीडबैक आ रहा था कि मैनुअल डेटा एंट्री बहुत था। और मैनुअल डेटा एंट्री से क्या प्रॉब्लम होता है कि इट कैन बी रॉन्ग एंट्रीज, ट्रांसक्रिप्शन एरर आ जाता है। फिर एक इनवॉइस दूसरे सिस्टम में जाएगा तो वो इंटरकॉम्पेटिबिलिटी नहीं रहता है। इसके लिए वो मैनुअल एंट्री वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैनुअल एंट्री को निकालने के लिए। सो ई इनवॉइसिंग में सो ब्रॉडली ई इनवॉइसिंग अपने को क्या करना है, इट इज अ डिजिटली विद और विदाउट कंप्लायंस कंपोनेंट। एक इनवॉइस एक बिल जनरेट होगा और वो इनवॉइस सॉफ्टवेयर थ्रू होता है। यू कैन टैली से भी हो सकता है, एसएपी से भी हो सकता है, ओरेकल से भी हो सकता है। वो उसको ई इनवॉइसिंग नहीं बोलते हैं। उसमें से एक इनवॉइस वो सर्टेन फॉर्मेट में रहना पड़ेगा जो एग्री कर रहा है। गवर्नमेंट ने अपने को एग्री करके बोला कि ये फॉर्मेट में रहना पड़ेगा, ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए, वो होना पाए। फिर वो बिल है ना इलेक्ट्रॉनिकली इट इज एक्सचेंज बिटवीन द अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। जो वेंडर और बायर के होते हैं वो डिपार्टमेंट के बिल्स एक्सचेंज होते हैं एंड वो कंप्लायंस हो जाता है। तो उसमें ई इनवॉइस रिपोर्ट होता है फर्स्ट, और फिर वो गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जाके वैलिडेशन होगा एंड उसके अंदर वो गाइडलाइंस है जो मैं आपको वो प्रोसेस जब नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो आपको वो प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे होता है। और अभी क्या होता है कि अभी सप्लायर बायर है। अभी सप्लायर ने इशू किया ई इनवॉइस, वो सप्लायर को वो इनवॉइस आके एक नोटिफाइड पोर्टल में भी जाके अपलोड करना पड़ता है यूजिंग एपीआई और नहीं तो मैन्युअली। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे टैली है, एसएपी है, ओरेकल है, वो लोग सब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है वो आईपीआर पोर्टल से। तो आईपीआर पोर्टल में क्या होगा, फिर पहले वो इनवॉइस जाएगा, एक उसको एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इनवॉइस 01, और टेक्निकल लैंग्वेज में उसको एक जेसन फाइल बोलते हैं, जो जाएगा वो आईआरपी के पोर्टल में। और वो आईआरपी पोर्टल में क्या होगा, वहां पे उसको साइन सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर करके एक आईआरएन जनरेट होगा और एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। वो आके वो फिर से आ जाएगा। वो क्या होता है, वेरी यूनिक रहता है वो जो सेंट्रल सिस्टम दे रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आईआरएन स्लैश क्यूआर कोड
ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सप्लायर को आ जाता है, फिर वो सप्लायर वो ई इनवॉइस बायर को दे देता है। अभी इसमें क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको वो डिजिटली हो गया, वो ट्रैक हो गया, प्लस इट इज नाउ बीइंग वैलिडेटेड आल्सो। या तो दिस इज ए इनवॉइसिंग का सिनेरियो है, टिपिकल सिनेरियो है, कोई भी सेगमेंट में होता है। अभी क्या है कि इंडिया में जीएसटी भी है अपने अपने यहाँ। सो व्हाट इज ए इनवॉइसिंग जीएसटी में कैसे लागू होगा, ए सिनेरियो में कैसे लागू होगा? या सो ई इनवॉइस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे सब B2B इनवॉइसिंग इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होता है। अभी B2B का मतलब क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस। अभी के लिए तो अपने लीगल गैम्बिट में B2B सिनेरियो बहुत कवर कर रहे हैं। B2C अभी तक नहीं, जो डायरेक्टली आप कंज्यूमर को बेच रहे वो अभी के लिए नहीं फॉल्व हो रहा है। बट B2B इनवॉइसेस जो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होना चाहिए और उसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा, जो मैंने प्रायर स्लाइड में दिखाया था, वो स्लाइड से ऑथेंटिकेशन आके वो QR कोड जनरेट होना पड़ता है, वो डेजिग्नेटेड पोर्टल से मिलेगा। वो एक बार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो एक अपने को एक यूनिक IRN बोलते हैं, जिसको इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जो एक एक इनवॉइस के लिए यूनिक रहेगा। जैसे आज के अपन रेलवे टिकट का बुकिंग करते हैं तो उसमें कैसे कि एक टिकट नंबर आ जाता है, लाखों लोग करते हैं तो ऐसे एक नंबर, रनिंग नंबर आएगा। ऐसे ही एक IRN नंबर गवर्नमेंट जनरेट करेगा वो पोर्टल से, वो यूनिक रहेगा। तो सभी जितने भी हम लोग इनवॉइस इंडिया में जनरेट हो रहे हैं आज के तारीख में, अभी जो ये सिस्टम ई इनवॉइसिंग में हो रहे हैं, सबका एक यूनिक नंबर रहेगा। और जब आपके पास क्रेडेंशियल होगा और कोई भी आप वो गवर्नमेंट वेबसाइट में वो यूनिक नंबर डालेगा, वो इनवॉइस का डिटेल आ जाएगा पूरा। अलॉन्ग विद इनवॉइस में डिजिटली साइन भी होता है और एक QR कोड भी आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस इसके ई इनवॉइसिंग अंडर GST बोलते हैं। IRN तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, बट उसके बारे में 1-2 मिनट बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर ये बहुत यूनिक होता है। ये नंबर यूनिकली एक ही इनवॉइस का एक ही यूनिक नंबर रहेगा। और ये पोर्टल और ये इनवॉइस रजिस्टर पोर्टल IRP बोलते हैं इसको गवर्नमेंट लैंग्वेज में। IRP पोर्टल में ये जाके ये यूनिक नंबर डाल सकते हैं हम, और ये इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे अपलोड होगा। फिर ई इनवॉइसिंग सिस्टम GST में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग GST में करते हैं, हम सबको मालूम है, क्योंकि अभी अब GST एवरीवन कर रहे हैं। इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो लॉ अपने को बता रहा है, वो सब IRP सिस्टम में जाता है। एवरी टाइम जब ये यूनिक डॉक्यूमेंट अपलोड होता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, और उसके नंबर के अंदर एक IRN जनरेट होगा वो सिस्टम से। IRN टेक्निकली भी क्या होता है, जो टेक्निकल बंदे जो लोग है जो कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसको IRN को हैश भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स। या अभी मैंने जैसे आपको बोला ई इनवॉइस कहाँ कहाँ पे लागू है आज के तारीख में, तो जो B2B बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, तो वहां पे अपने को ई इनवॉइस करना पड़ेगा। फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट, जो अगर हम गवर्नमेंट को कुछ सर्विस और कुछ प्रोडक्ट बेच रहे, कुछ सर्विस बेच रहे, मैन पावर बेच रहे, तो आपको करना पड़ेगा, तो उसको B2G करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। अगर आपको ई कॉमर्स के ऑपरेटर थ्रू भी आप ये दोनों अबव कर रहे हैं तो भी आपको करना पड़ेगा। और रिवर्स चार्ज ट्रांजैक्शन जब आप कर रहे हो किसी के साथ, तो भी आपको ये लागू होगा। तो ये सब ई इनवॉइसिंग के गैम्बिट में ये अपने लॉ कंप्लायंस में आ जाता है। और जैसे मैंने आपको बोला एप्लीकेबिलिटी क्या है ई इनवॉइसिंग के लिए, इनवॉइस चाहिए, डेबिट नोट चाहिए, अपने को क्रेडिट नोट चाहिए। फिर अमुक डॉक्यूमेंट्स एंटर नहीं करने जो हम लोग गलती से एंटर करते हैं, डिलीवरी चालान नहीं चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई नहीं चाहिए, जॉब वर्क वो नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए सिर्फ इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो ये सब एप्लीकेबल होता है व्हेन वी ट्राई टू जनरेट ई इनवॉइस। और जब आपको प्रोडक्ट डेमो करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है ये सब। अभी क्या था कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, और अपने पास मैंने जैसा आपको पहले भी शुरुआत में बोला 60-80% ऑफ द कंपनीज MSME सेगमेंट में फॉल होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये इनवॉइसिंग। या तो पहले क्या किया था कि अक्टूबर 2020 में क्या हो गया, जो 500 करोड़ के ऊपर की कंपनी है उसको कंपलसरी किया कि आप लोग को इस सिस्टम में आने का है। फिर 2021 में जनवरी में क्या हुआ, 100 करोड़ की जितनी भी कंपनी है उनको ये करना पड़ा। फिर आके 2021 लास्ट ईयर जो अपना अप्रैल था, तो 50 करोड़ के ऊपर की जो भी कंपनी कर रही है तो उसको टर्नओवर है तो उसको ई इनवॉइसिंग में आना पड़ा। फिर 1 अप्रैल 2021 में 20 करोड़ हुआ, और लास्ट मंथ में जब अक्टूबर 2 महीने पहले अक्टूबर में 10 करोड़ का हो गया। और एक अभी एक नोटिफिकेशन आया है जहां पे 10 करोड़ की कंपनी को सबको इनवॉइसिंग करे। एंड फ्रॉम जनवरी 2023 में
5 करोड़ के ऊपर वाले को भी अभी ई इनवॉइसिंग गैम्बिट में आएगा। सो जब जनवरी आएगा तब, तो इसमें एमएसएमई को क्यों कंपाइल करना पड़ेगा? बिकॉज अभी जो जीएसटी का नोटिफिकेशन जो आया था 01/2021 जनवरी डेटेड फरवरी 24 को आया था, तो उसमें वेरी क्लियरली बोल दिया कि जो भी इंटरप्राइज टर्नओवर 20 करोड़ टू 50 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ था, वो लोग को सबको आना पड़ेगा इनवॉइस में, और उसको ई इनवॉइसिंग फ्रॉम April 1st 2022 से कंपलसरी दे हैव टू स्टार्ट यूजिंग ई इनवॉइसिंग। फिर ऐसे ऐसे अपडेशन आते रहे, फिर 10 करोड़ हो गया, फिर क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला कि सब टर्नओवर जीएसटीएन के अंदर सिंगल पैन नंबर से आएगा। फिर एसएससी का थ्रेशोल्ड लिमिट अगर 10 करोड़ के ऊपर चला जाता है ओ ईयर में, तो ई इनवॉइसिंग ओ एसएससी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट 11 अक्टूबर 2022 में और एक सर्कुलेशन आया गवर्नमेंट ने, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि द जीएसटी काउंसिल ने अभी लागू किया है कि जीएसटी नेक्स्ट फेज में ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस जो 5 करोड़ के ऊपर होगा जनवरी 1st 2023 से, तो उनको भी ई इनवॉइसिंग गैम्बिट में आना पड़ेगा विद द टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ बाय एंड ऑफ नेक्स्ट फिजिकल ईयर। तो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे 5 करोड़ से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग जब जाएंगे 2023-24 में, जीएसटी काउंसिल कैन कम डाउन टू 1 करोड़ टर्नओवर। सो सब कंपनियों धीरे धीरे दे आर ब्रिंगिंग देम इनटू दिस स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट ये अपडेट करके धीरे धीरे सब कंपनियों को ये प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको राइट सॉफ्टवेयर चाहिए और आपको राइट इंटीग्रेशन चाहिए जो पोर्टल में जाएगा और लेके आएगा। ये तो सब कंपनी के लिए टाइम दे रहे हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। फिर ई इनवॉइसिंग के लिए थोड़ा लीगल प्रोविजंस भी है। तो वो तो आपके फाइनेंस और सीए को ये मालूम होगा कि रूल नंबर 48(4) से जीएसटी रूल्स के प्रमाण से आपको इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा वो जीएसटी आईएनवी 01 के खिलाफ। फिर आईआरपी पोर्टल में जाना पड़ेगा, फिर वहां से आईआरएन लेना पड़ेगा, फिर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा उसके, और इनवॉइस हैज टू बी नोटिफाइड बाय अ पर्सन जो ये करेगा एज पर द रूल 48(5). फिर जहां पे भी होगा ये इनवॉइसिंग यही चालू होगा। इसमें फिर आपको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे एज पर द रूल 48(6) में जो हम लोग पहले करते थे। और अभी ये ई इनवॉइसिंग कैसे क्रिएट होगा? ई इनवॉइसिंग कैन बी क्रिएटेड ऑन एनी ऑफ द अकाउंटिंग, बिलिंग और ईआरपी सिस्टम। पहले क्या था कि हम लोग करके मैनुअली वो सिस्टम में, और अभी क्या है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम है, कोई भी बिलिंग सिस्टम है, कोई भी ईआरपी सिस्टम है, वहां पे ई इनवॉइसिंग आप क्रिएट कर सकते हो। ई इनवॉइस प्रिपेयर होगा, वो प्रिपेयर करके वो पोर्टल में जाके इंटीग्रेट होगा, वो आईपीआर पोर्टल में इंटीग्रेट होगा, वो आईपीआर पोर्टल से वो आईआरएन नंबर आएगा और वो नंबर वो इनवॉइस में आ जाएगा एंड आपको वो डिजिटली साइन हो जाता है। IRP will also generate the QR code will consist of, उसके अंदर QR कोड में जब आप बार कोड में स्कैन करोगे तो क्या क्या आता है, तो जीएसटीएन सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों का जीएसटीआईएन आ जाता है, इनवॉइस नंबर आ जाता है, जो सप्लायर ने इनवॉइस नंबर देता है वो आ जाता है, विच डेट वो इनवॉइस जनरेट हुआ वो डेट जनरेशन आ जाता है, इनवॉइस का टैक्सेबल वैल्यू और क्रॉस टैक्स क्या है, क्या क्या लाइन नंबर ऑफ लाइन आइटम्स कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, वो इनवॉइस में वो आ जाता है। फिर आप अपने को आ जाता है HSN कोड ऑफ मेन आइटम्स आ जाता है, हाईएस्ट टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो आ जाएगा आपको। फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, एक हैश आ जाएगा। ये सब वो बारकोड के अंदर रहेगा। वो जब बारकोड स्कैन करोगे ये सब डिटेल सॉफ्टवेयर नहीं तो वो डिवाइस जो स्कैन करेगा ये सब डिवाइस उसमें से निकाल सकता है। और ये एडवांटेज क्या हो गया, जब ये क्यूआर कोड आ जाता है तो ये अभी सब सिस्टम जो भी अकाउंटिंग सिस्टम कंपनियां यूज कर रही हैं, बिलिंग सिस्टम क्या यूज कर रही हैं, अच्छी सब कंपनियों में उसमें क्या एक मोबाइल ऐप आ जाता है, तो वो मोबाइल ऐप थ्रू ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी मुझे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डाउनलोड हो गया है और वो डिजिटली साइन हो गया है, सब इंफॉर्मेशन वो क्यूआर कोड में है। सो नाउ यूजिंग मोबाइल ऐप ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड फिर और एक प्रोविजन क्या हो गया कि जब ये इनवॉइस आ जाता है तो सब कंपनी उनके लोगो डाल के प्रिंट करके यू कैन प्रेजेंट विद इट। या तो एक बार आ जाता है वो क्यूआर कोड और वो इनवॉइस वो डिजिटली साइन करके आ जाता है, देन कंपनी कैन ऐड देयर लोगो एंड यू कैन गो अहेड एंड प्रिंट इट। और अभी क्या हो गया कि जैसे जैसे हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, नया नया कंप्लायंस आ रहा है, तो एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 ऑफ न्यू रिटर्न्स ऑटो फिल हो जाता है ई इनवॉइसिंग सिस्टम से। सो जो भी ई इनवॉइसिंग में डेटा है अभी, तो अपने एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2
जो हम लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वहां से वो इंफॉर्मेशन ले लेता है। इसके लिए ये सब ऑटोमेट हो रहा है धीरे धीरे। सो ई वे बिल भी क्या होता है, ई वे बिल होता है पार्ट ए ऑफ ई वे बिल इज क्रिएटिंग ई इनवॉइसिंग। या तो पहले हम लोग ई वे बिल सिस्टम में भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि दो पार्ट रहते हैं। तो एक पार्ट होता है कि आपको ई इनवॉइसिंग क्रिएट करना पड़ेगा, तो अभी आप जो ई इनवॉइसिंग कर दोगे तो ई वे बिल का वन पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आपको कंप्लीट हो गया। फिर पर्सन रेस्पॉन्सिबल विल हैव टू फिल अप द पार्ट बी टू जनरेट एवरी ई-वे बिल एवरी टाइम द मूवमेंट ऑफ द गुड्स होता है। तो सेकंड पार्ट क्या होता है कि जब भी मूवमेंट ऑफ गुड होता है तो उसका एंट्री भी आपको करना है, वो पार्ट 2। तो ये अगर आप दोनों क्रिएट कर देते हो तो आपका ई-वे बिल भी आपके सिस्टम में आ जाता है। अभी मोड्स ऑफ गेटिंग इनवॉइस रजिस्टर्ड अभी कैसे कर सकते हैं हम लोग ये सब। गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कर सकते हैं वेब बेस कर सकते हैं, एपीआई बेस कर सकते हैं, एसएमएस बेस कर सकते हैं, ऑफ टूल से बेस करते हैं, जीपीएस बेस। कोई भी आपके सिस्टम होगा, कोई भी आपके आज के तारीख में आपका कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा कि बिलिंग सिस्टम रहेगा कि ईआरपी सिस्टम रहेगा, वो एक एक वन ऑफ दिस बुलेट पॉइंट्स में फॉल हो जाएगा, नहीं तो मल्टीपल में हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लेते हो टैली, एसएपी, ओरेकल, वो तो वेब बेस भी है, एपीआई बेस भी है, एसएमएस बेस भी है, जीपीएस बेस भी है। तो जैसे वो आ जाता है कि किसी वो सब आ जाता है, तो आज के तारीख में सब अच्छा सिस्टम ये सब कैटेगरी में आ जाता है, और वहां से आपको इनवॉइस जनरेट रजिस्टर कर सकते हैं आप। और आपको ये भी दिखाएंगे डेमो कैसे होता है। तो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम लॉगिन का ए स्टैंडर्ड गवर्नमेंट का वेबसाइट है जहां पे आप लॉगिन कर सकते हो, वो तो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कैसे रहेगा, सैंपल है, ये चेंज ये हर क्वार्टर इसका यूआई यूएक्स थोड़ा चेंज रहता है। फिर डैशबोर्ड रहता है अपना का, कितना जनरेशन हुआ, कितना कैंसिल हुआ, तो ये सब आपको अभी गवर्नमेंट के पोर्टल के में ही मिल जाएगा आपको। और आपका एमआईएस रिपोर्ट यहाँ से ही हो जाएगा कि आपका कितना जनरेशन हुआ है, क्या कैंसिल हुआ है ये महीने में, लास्ट महीने में, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स भी आप निकाल सकते हो डैशबोर्ड से। और ये इनवॉइस का एंट्री फॉर्म है, ये एक सैंपल है। ई इनवॉइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहां से जो डिजिटली साइन होके आता है, ऐसे सैंपल आता है, ये डिटेल से सैंपल होके ये क्यूआर कोड से आ जाता है। अभी ये सब हो गया। अभी जस्ट टू रिकैप हम लोगों ने क्या बात किया है, वो एक प्रोसेस क्या बात किया है, इसका 4 मेजर बकेट्स है। एक सप्लायर हो गया, एक बायर हो गया, जो तो हम लोग को मालूम है, वो पहले भी हम लोग करते थे, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। सप्लायर रेस करता है, बायर को चला जाता है। अभी क्या हो गया कि ई इनवॉइसिंग में दो बीच में पिलर ऐड हो गए, 2 न्यू पिलर्स हैव बीन एडेड। वो कौन सा पिलर ऐड हो गया, एक आईआरपी हो गया, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऐड हो गया, और सेकंड आ गया अपना जीएसटी सिस्टम। तो अभी क्या है कि 4 पिलर हो गया अपने पूरे प्रोसेस में, सप्लायर, आईआरपी, जीएसटी सिस्टम और बायर। सप्लायर कौन होता है, सप्लायर अपने पास जो भी हम लोग सेल कर रहे हैं, जो सिस्टम से और ऑफलाइन से, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जेसॉन, नहीं तो वो एक फाइल थ्रू हम लोग जनरेट करेंगे, उस सिस्टम जनरेट करें। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम के ईआरपी सिस्टम, एग्जांपल टैली, एसएपी, ओरेकल, कोई भी सिस्टम है वो जनरेट करेगा। वहां से अपलोड होगा ई इनवॉइस जेसन फॉर्मेट से, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक स्कीमा है जो INV01 है। तो ये सब सिस्टम क्या होता है कि दे कंपाइल टू द लीगल रिक्वायरमेंट, वो हो जाएगा। वहां से क्या होगा, वो एक गवर्नमेंट टू B2B एक गेटवे होता है, एक एपीआई गवर्नमेंट ने दिया है। तो वो सिस्टम क्या करते हैं, वो एपीआई थ्रू आईआरपी में जाता है, ये पोर्टल में जाता है। और आईआरपी में क्या होता है, ये सब डेटा जो आपने एंटर किया वो सिस्टम थ्रू, वो वैलिडेट करते हैं। वो अगर सब ठीक है तो इमीडिएटली एक IRN जनरेट होता है, और वो इनवॉइस पेलोड जीएसटी सिस्टम में जाता है। फिर वहां से आपको जीएसटी सिस्टम में जाता है। कैसे जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं G2G, एक एपीआई होता है, और वहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एपीआई चला जाता है। वहां पे रूल्स एक बार देख लेते हैं, और वहां पे रूल्स सब ठीक है, फिर जीएसटी सिस्टम में हो जाता है, एवरीथिंग इज राइट। फिर क्या होता है, वो इनवॉइस डिटेल्स जीएसटी सिस्टम में भी सेव हो गया, ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, जीएसटीआर 1/2A में पॉपुलेट हो जाएगा। फिर बैक इट आ जाता है आईआरपी सिस्टम में। आईआरपी सिस्टम में अभी क्या होगा, ये जीएसटी सिस्टम से प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अभी ऐड होगा अपना क्यूआर कोड। फिर इसको साइन मिलेगा, इनवॉइस का जेसन का साइन सिग्नेचर आ जाएगा। फिर ये पुश करेगा ई वे बिल सिस्टम में, वो सेपरेट सिस्टम है। अगर अपने को ई वे बिल भी इंटीग्रेट करना है तो उसका एक सेपरेट टॉपिक है, वहां पे भी आप पुश कर सकते हैं। एंड वो फिर से ये डेटा पुश हो जाएगा आपके जो भी सिस्टम से ये जनरेट किया था आप लोगों ने, कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम के ईआरपी सिस्टम से ये आ जाएगा। तो ये पूरा फ्लो है जो ई इनवॉइसिंग में कवर होता है।
तो ये लीगली अभी सब कंपनियां, जैसे मैंने बोला, वो टर्नओवर के हिसाब से नाउ दे नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस एक्चुअली। और ये सैंपल फॉर्मेट आपको आगे भी दिखाया था, और ऐसे सब ऐसे एक इनवॉइस, एक सैंपल इनवॉइस है जो जनरेट हो जाता है। अभी द रीजन अभी तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोग को सबको मालूम है क्यों कर रहे हैं ये गवर्नमेंट वाई इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सब डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप कंट्री में ये लागू हो गया है एंड ये इम्प्लीमेंट, उसका बेनिफिट बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो हम लोगों ने बताया कि सब स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक फॉर्मेट में आ जाता है और एक ही टाइम अपलोड करना है, एंड फिर उसके बाद क्या होता है, प्री पॉपुलेट हो जाएगा। कोई भी आपको ई वे बिल सिस्टम है कि जीएसटी सिस्टम के और कोई भी आईटीआर रिटर्न्स में सब वहां से इंफॉर्मेशन पुल हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि एक ही टाइम डेटा राइटली अपलोड हो जाना चाहिए, फिर वहां से कोई भी सिस्टम में जाना है, ये डेटा यहाँ से वो दूसरे सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने बताया कि पार्ट ए ऑफ ई वे बिल ऑटो कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि जब आप ई वे बिल में इंप्लीमेंट करने वाले हो तो उसमें दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए क्या है, ई इनवॉइसिंग है। अगर ई इनवॉइसिंग हो गया, वहां से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा एपीआई थ्रू, जैसे मैंने आपको प्रायर स्लाइड में दिखाया था। जब अपलोडिंग हो जाता है, फिर क्या होता है कि बी टू बी डिटेल्स ऑटो कैप्चर हो जाता है। तो अभी आपको क्या, जीएसटीआर 1 रिटर्न में आप जब आपने फाइल किया होगा तो आपको देखा होगा वो वैल्यू सब कैसे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ ए रीजन से वो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका वो रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। फिर आपको सिर्फ वैलिडेट करना है और एक्सेप्ट करना है। फिर बिगेस्ट सब सीएस और सीएफओ ने जो चैलेंज बोला था, इसमें ये कब हो जाता है, सब्सटेंशियल रिड्यूस इन इनपुट क्रेडिट वेरिफिकेशन। अभी क्या है, इनपुट क्रेडिट वेरिफिकेशन सेम डेटा रिपोर्ट करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत अभी कब हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाता है कि उसके लिए क्या पेपर वर्क और फॉलो अप और उसका हेडेक थोड़ा कम हो जाता है। On receipt of the info from GST system, a buyer can do a reconciliation with his purchase register, accepted or rejected or time of due return. तो अभी क्या हो जाता है कि जीएसटी सिस्टम में भी क्या एक थोड़ा इजी हो गया कि बायर को भी रिकंसिलेशन कर सकते हैं। और वो रिकंसिलेशन कैसे करेगा, उनका कोई भी सिस्टम है वो परचेस रजिस्टर से देख लेगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। सो बेस्ड ऑन दैट वो पूरा फ्लो अभी इजी हो गया है और इसको कंप्लीट ट्रेल एक मिल जाता है। सी दैट इज द होल पर्पस, क्यों कर रहे हैं कि अभी एक ये सिस्टम से फ्लो होगा तो उसका एक ट्रेल रहता है, तो उसका डेट एंड टाइप से लेके ये पूरा एक ऑडिट ट्रेल और सिस्टम मैचिंग हो जाता है। तो अभी क्या होता है कि इसमें से क्या हो जाता है कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए और टैक्स इवेशन बचाने के लिए बहुत अभी कोई टैक्स इवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ अभी डिजिटली हो रहा है, सब कुछ सेंट्रलाइज सर्वर में आ गया है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द गैम्बिट विद द टैक्स सिस्टम एक्चुअली। और ये सब करने का बिगेस्ट एडवांटेज अपने इकोनॉमी ग्रो करने के लिए इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय एलिमिनेटिंग फेक इनवॉइस। अभी फेक इनवॉइस थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जितना हो रहा है मार्केट में अभी वो कम हो जाएगा ये इनवॉइसिंग यूज करते हैं। तो ये सब बेनिफिट एमएसएमई को आता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अभी क्या हो जाएगा, आपको एक आईआरएन नंबर मिल जाता है। तो आईआरएन नंबर आपको कंप्लायंस के लिए, जीएसटी कंप्लायंस के लिए आ जाता है। फिर आता है आपके बिजनेस को, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जाना है, कोई भी आपको फ्यूचर सैस सॉफ्टवेयर में जाना है तो वो ऑटोमेट कंप्लायंस हो जाता है, तो आपको वो मॉड्यूल अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर ई इनवॉइसिंग क्या होता है कि ग्रेजुअली गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, टैक्स इवेशन करने के लिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, आईटीसी के लिए ये सब इजी हो जाता है। और हम लोगों ने पहले भी अपने देख लिया, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट ऑफ डिजिटल जीएसटी इनवॉइस हो जाता है। फिर रियल टाइम सब ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऑटो फिल हो जाता है जीएसटीआर 1 में, या फिर ईज ऑफ शेयरिंग ऑफ इनवॉइस बिटवीन बायर एंड सेलर हो जाता है। फिर ई वे बिल जनरेशन करने के लिए भी, क्योंकि पार्ट ए के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो भी इजी हो जाता है। ये सब बेनिफिट अपने को मिलता है जब हम लोग ये ई इनवॉइसिंग करते हैं। फिर वेंडर ऑनबोर्डिंग का भी इजी हो जाता है, बिकॉज क्या होता है कि इनवॉइस जनरेट होता है सप्लायर के पास, वो इजीली वो कस्टमर अपने एप्लीकेशन में भी डाल सकता है और वो प्रोसेस कर सकता है। फिर मेजॉरिटी हम लोगों ने स्टार्ट पे भी देखा था कि मैनुअल डेटा एंट्री जो होता है, तो उसमें वो सब एरर भी कम हो जाएगा। फिर इम्प्रूव फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस भी हो जाता है, बिकॉज इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग के हिसाब से अभी वो इम्प्रूव फॉर्मल क्रेडिट का भी एसएससी हो जाता है। ये सब बेनिफिट अपने को मिलता है व्हेन वी स्टार्ट गोइंग एंड implementing the e-invoicing। या इसके लिए now almost all the companies have to start following, because ये अभी एक लीगल कंप्लायंस, पहले क्या था अपने के पास एक चॉइस था करना है नहीं करना है, अभी तो क्या है कि ये लीगल कंप्लायंस हो गया। जैसे मैंने आपको आर्टिकल दिखा है, अभी वो जो भी वो टर्नओवर के हिसाब से नाउ इट इज लीगली
हम लोगों को अभी वो ई इनवॉइसिंग सिस्टम को लेना ही पड़ेगा. It can be in your account system, it can be your billing system, or it can be in your ERP system, but ये प्रोसेस अपने को लागू करना पड़ेगा. We have to implement this process here. And as I said to you, all of this is leading to tax evasion को कर्ब कर सकते हैं. और इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया, ई इनवॉइसिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज करने के लिए 30 मैंडेटरी फील्ड्स कर दिया है. अभी पहले 50 था, अभी उसमें से 30 हो गया. तो ये सब डिटेल आपको वो वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. प्रोडक्ट कोई भी आप जो आपके प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें भी आ जाता है. और मैं यहाँ पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये सब की फील्ड्स दिखा रहा हूँ. डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइप कोड है, फिर सप्लाई लीगल नेम है, सप्लाई का जीएसटीएन है, सप्लाई एड्रेस, सप्लाई प्लेस, सप्लाई का स्टेट कोड आ जाता है, सप्लाई का पिन कोड, फिर डॉक्यूमेंट नंबर, प्रेसिडिंग इनवॉइस रेफरेंस एंड डेट आ जाता है, डॉक्यूमेंट डेट आ जाता है, और रेसिपिएंट का लीगल नेम आ जाता है. फिर अपना रेसिपिएंट का जीएसटीएन आ जाता है, उनका एड्रेस आ जाता है, उनका स्टेट कोड आ जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट कोड आ जाता है, पिन कोड रेसिपिएंट का कौन से जगह से है, फिर वो आईआरएन नंबर जो हम लोगों ने बोला वो पोर्टल से आ जाता है, फिर वो शिपिंग को टू जीएसटीएन का डिटेल्स आ जाता है, किसको डिलीवर करना है, शिपिंग का एड्रेस क्या है, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है उसका डिटेल्स, विच सर्विस है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका टाइप, सप्लाई टाइप कोड क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन कोड क्या है, आइटम प्राइस क्या है, असेसेबल वैल्यू क्या है, फिर जीएसटी का कौन से रेट में आता है बेस्ड ऑन द एचएसएन कोड एंड आइटम प्राइस, फिर आईएसडी का वैल्यू क्या है, फिर टोटल इनवॉइस का वैल्यू क्या है. तो ये सब डिटेल्स वो ई इनवॉइसिंग में आ जाता है. और ये पूरा अभी क्या कि ई इनवॉइसिंग अभी क्या डिजिटली हो गया है. इट बिकम सीमलेसली हो जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस ई इनवॉइसिंग का था. और यही अभी बिकॉज ऑफ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक फिर से आपको दोहराता हूँ वो स्क्रीन में. अभी क्या कि ऑल द कंपनीज जो 500 करोड़ के ऊपर है, तो वो लोगों ने तो इंप्लीमेंट कर दिया बिकॉज लीगल कंप्लायंस था. फिर 100 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, और जनवरी से जीएसटी काउंसिल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है. उनके वेबसाइट में तो आ गया है, 5 करोड़ का आ गया है. और नेक्स्ट फिजिकल ईयर में जब आएगा, दे आर सेइंग के 1 करोड़ एंड अबव करना पड़ेगा. तो जो भी अभी एसएमई 1 करोड़ के 5 करोड़ के ऊपर है, वी नीड वो सबको अभी ये सोचना पड़ेगा, और दे हैव टू मूव इनटू दिस सिस्टम बिकॉज वो लीगल कंप्लायंट हो रहा है. 10 करोड़ के ऊपर तो कंपलसरी हो गया, लेकिन करना ही पड़ेगा. लेकिन अभी जो 5 करोड़ और 1 करोड़ के ऊपर जो एसएमई है, दे आल्सो हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि इसके ओर में जाना पड़ेगा गैम्बिट के अंदर. Thank you, Mandakini. Thank you for giving me opportunity to share my the concept on e-invoicing. If any questions are there in the chat, I will try to take it up in the chat. And thank you once again for having me here. Yeah. Thank you so much, sir. Thanks a lot for sharing your valuable inputs on e-invoicing. And I'm sure our audience would have got a very insightful information. In the meantime, audience has written a few of the queries on chat. I would request you if you can address those. And meanwhile, if any query is pending, we will definitely revert back to you. Please drop us your phone number or email ID. We will definitely reach every one of you with the appropriate answers. Now, as the session is already intimate, now I would like to introduce and invite my colleague Rakesh Sharma, who is a business manager and has been associated with Tally for more than 3 years. He has got a lot of experience with Tally as a product and related domain expertise as well. His area of expertise includes knowledge of GST domain and Tally product. He will be showcasing the functionalities of our product, Tally Prime, which makes business operations across segments simpler. So over to you, Rakesh. Please start your presentation. So I think I am audible. Yes, Rakesh. Screen is visible. So thank you, Mandakini. Yeah. And good evening, everyone. And thanks, Mandakini, for brief introduction. And I would also like to thank Mihir sir for sharing detailed and insightful information about the compliance of e-invoice. So without any further delay, we have to move on today's topic, that how we can implement
एक बड़ा इम्प्लीमेंट नहीं कहूँगा, तो हाउ वी कॉन्फ़िगर बेसिकली टैली जितना सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है तो इम्प्लीमेंट उतना ही थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वर्ड हो गया, तो मैं बात कहूँगा कॉन्फ़िगर कि हाउ वी कॉन्फ़िगर ई इनवॉइस रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हम टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एंड उसके ऊपर हम डिटेल में इस सेशन में देखेंगे. So we'll move on topic today's. So recently जो CBIC का नोटिफिकेशन है कि 1 अक्टूबर से बिजनेस एंटिटीज और टैक्स पेयर्स हु हैव टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ उनके लिए 1 अक्टूबर से ई इनवॉइस जो रेगुलर इनवॉइस है उसको ई इनवॉइस में क्रिएट करना मैंडेटरी हो गया है. सो ई इनवॉइस में कौन सी डिटेल्स हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं, क्या कोई बेसिक डिटेल से डिफरेंट है या फिर जो रेगुलर इनवॉइस है उसमें क्या कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें ऐड करना है एट द टाइम ऑफ ई इनवॉइस जनरेशन. सो गोइंग फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इनवॉइस है जहाँ पे एक QR कोड है एंड 64 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक IRN नंबर मेंशन है. सो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आपका जो इनवॉइस है वो रेगुलर इनवॉइस से ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो चुका है. एंड ई इनवॉइस में कोई ऐसी एडिशनल डिटेल्स हमें ऐड नहीं करनी है जो रेगुलर इनवॉइस में डिटेल्स होती हैं, लाइक सेलर डिटेल्स, बायर डिटेल्स, कंसाइनी नेम. अगर बिल टू शिप टू का केस है तो कंसाइनी के साथ जो डिस्पैच डिटेल्स है वो शिप टू डिटेल्स भी वहाँ पे वेल मेंशन होनी चाहिए. डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स, किस पर्टिकुलर लोकेशन से आपका स्टॉक डिस्पैच हो रहा है, लाइक कि आपका जो बिजनेस ऑपरेशन से किसी अदर लोकेशन पे बेस्ड आउट है एंड आपका जो गोडाउन है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो किसी दूसरी लोकेशन पे, तो डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स भी आपका वेल डिफाइन होना चाहिए. आइटम से रिलेटेड जो डिटेल्स है लाइक क्वांटिटी, रेट, UQC, HSN है वो उस आइटम को कोरिलेट करना चाहिए. इनवॉइस डिटेल्स, इनवॉइस जो आपका जो इनवॉइस नंबरिंग है वो यूनिक होना चाहिए, वहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, एक ही आपका इनवॉइस नंबर बार बार रिपीट ना हो. एंड डेट, डिस्काउंट, अदर चार्जेस, अमाउंट, जो डिस्काउंट्स हैं वो भी वेल डिफाइन होने चाहिए कि किस फॉर्म में कितना डिस्काउंट्स हम हमारे बायर्स को ऑफर कर रहे हैं. एंड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के केस में शिपिंग बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, ये सारी डिटेल्स हमें ऐड करना है. एंड अगर उस पर्टिकुलर वाउचर के साथ ई-वे बिल का कंप्लायंस भी ऐड हो रहा है जहाँ पे इनवॉइस वैल्यू 50,000 से अबव है, तो हमें ट्रांसपोर्टर जो पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस है वो, एंड मोड ऑफ ट्रेवल क्या है आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट होने का, एंड डिस्टेंस टू डिस्टेंस पिन कोड, ये सारी चीज़ें वेल डिफाइन होनी चाहिए. सो जिन बिजनेस एंटिटीज या जिन टैक्स पेयर्स के लिए ये कंप्लायंस अप्लीकेबल हो गया है उनको क्या प्रिपेयर्डनेस करना है. सो जिस भी स्लैब के लिए ये अप्लीकेबल हो रहा है उन टैक्स पेयर्स को एक डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा. एंड कम्युनिकेशन रिसीव होने के बाद आपको IRP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है एंड वहाँ पे जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है IRP पोर्टल पे वो हमें ऐड करना है. एंड सेलेक्ट देयर प्रेफर्ड GSP इन केस ऑफ API बेस्ड इनवॉइस जनरेशन. सो एज ए टैली, सो टैली एज ए GSP कंपनी है, GSP इन द सेंस GST सुविधा प्रोवाइडर. जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था तो डिपार्टमेंट ने कुछ बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्राइजेज हैं जो इस अकाउंटिंग ऑटोमेशन सर्विसेज में डील करते हैं, वहाँ पे कुछ एंटरप्राइजेज को एज ए GSP नॉमिनेट किया था. तो टैली इज वन ऑफ GSP कंपनी. सो API बेस्ड जो ई इनवॉइस सॉल्यूशन एज ए टैली हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो हमारे MSME सेगमेंट के जो हमारे बिजनेस कस्टमर्स हैं उनके लिए, तो वो इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट करके इजीली इस कंप्लायंस को डे 1 से मीट आउट कर सकते हैं. एंड इस सॉल्यूशन को हमने इतना सिंप्लीफाई, इतना इजी बनाया है. गोइंग फर्दर हम देखेंगे कि कैसे हमें API रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम अपने रेगुलर इनवॉइस को ई इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे. सो इसी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस कंप्लायंस में फॉल करेंगे. सो B2B, B2G टैक्स इनवॉइस, एक्सपोर्ट के इनवॉइस, रिवर्स चार्जेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स. सो डोमेन पार्ट पे मिहिर जी ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है तो मैं डोमेन पार्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. हम डायरेक्ट प्रोडक्ट में मूव करते हैं ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो जो कंसर्न्स है उनको हम एड्रेस कर पाए। एक छोटा सा क्वेरी है यहाँ पे कि एक ही पैन के अंडर अगर मल्टीपल आपके बिजनेसेस रजिस्टर्ड है और उन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज में से किसी एक पर्टिकुलर लाइक ए पैन के अंडर बी सी डी ई 4 बिजनेस रजिस्टर्ड है एंड बी का जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़ है एंड जो रेस्ट ऑफ जो बिजनेसेस है उनका टर्नओवर 10 करोड़ से बिलो है, तो इस केस में क्या सभी बिजनेसेस के लिए इनवॉइस अप्लीकेबल रहेगा? सो डेफिनेटली सेम पैन के अंडर है सभी जीएसटीआईएन, तो सभी के लिए इनवॉइस अप्लीकेबल रहेगा। एंड सो टेक्नोलॉजी ऑफ इनवॉइस कैसे वर्क करता है, सो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। सो एज ए सप्लायर एक इनवॉइस हम रेज करते हैं एंड जीएसपी जो सॉल्यूशन है उसकी मदद से ये इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे हिट होता है। आईआरपी पोर्टल उस इनवॉइस से रिलेटेड जो डिटेल्स है उनको ऑथेंटिकेट करता है, वहाँ पे कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है किसी तरह का, लाइक एचएसएन कोड है वो वेल डिफाइन है, सेकंड जो इनवॉइस नंबर है वो यूनिक है, वहाँ पे कोई रिपीटेशन तो नहीं है, जो जिस पार्टी के साथ डीलिंग हो रहा है वो उनका जो जीएसटी नंबर है वो किस कंडीशन में है, बेसिकली मतलब सरेंडर तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है किसी वजह से। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आईआरपी पोर्टल वहाँ पे उस पर्टिकुलर इनवॉइस को जीएसटी सिस्टम का जो इनवॉइस रजिस्ट्री है वहाँ पे उसकी डिटेल सेव हो जाती है एंड आईआरपी पोर्टल उस इनवॉइस को एक आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करता है एंड उसी का एक कॉम्बिनेशन होता है 64 डिजिट का जो आईआरएन नंबर होता है उसी का कॉम्बिनेशन क्यूआर कोड रहता है। सो ये क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर एक इनवॉइस पे मेंशन होने जरूरी है एंड इसी के साथ जो बायर है उनका जो जीएसटीआर 2 एंड 2B है वो अपडेट हो जाता है एंड बायर ऑल्सो चेक क्यूआर कोड, जो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एप्स अवेलेबल्स है उनको यूज करके हम क्यूआर कोड को स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि द सेम इनवॉइस इज फेक और इट्स रियल इनवॉइस। सो वो डुप्लीकेसी भी अगर कुछ ऐसा है तो हम उसको एज ए बायर मैं भी चेक कर सकता हूँ कि अगर वहाँ पे कोई फेक इनवॉइसिंग या कुछ ऐसा हो रहा है तो, एंड अगर इनवॉइस में किसी भी तरह का कोई इशू है, लेट सपोज फेक इनवॉइसिंग का, तो उस केस में जो बायर का आईटीसी है, बायर उस केस में आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। सो हम जीएसपी की बात करें कि टैली एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कंपनी है, तो जीएसपी का क्या रोल रहेगा? सो जो जीएसपी कंपनीज हैं वो ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएटरी फॉर बिजनेस टू एक्सेस आईआरपी पोर्टल। जो जीएसपी कंपनीज हैं वो आईआरपी पोर्टल के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन में है। सो टैक्स पेयर जो है, जो जो बिजनेस एंटिटी है वो आईआरपी पोर्टल पे डायरेक्टली कोई भी डिटेल्स अपडेट नहीं कर सकते, उनको थ्रू जीएसपी अपनी डिटेल्स को अपडेट करना रहेगा। एंड सो मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो जो टैक्स पेयर्स हैं और आईआरपी पोर्टल के साथ जो ब्रिजिंग का जो जो प्रोसेस है वो बेसिकली जीएसपी कंपनी की रोल प्ले करते हैं बेसिकली। सो सो एड ई इनवॉइस टू योर इनवॉइसेस विद एटमोस्ट सिंप्लिसिटी। सो इस सॉल्यूशन को यूज करके हम अपने रेगुलर जो इनवॉइसेस हैं उनको इजीली इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमें हमारी कंपनी को ओपन करना है, देन F11 की कॉन्फ़िगरेशन में मूव करना है। F11 की कॉन्फ़िगरेशन में जहाँ पे हम हमारी जीएसटी की डिटेल्स ऐड करते हैं वहीं पे हमें ई-वे बिल की कॉन्फ़िगरेशन के जस्ट बिलो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें हाईलाइट मिलेगा, ई इनवॉइस एप्लीकेबल। सो जैसे ही हम इसको यस करेंगे देन यहाँ पे अदर ऑप्शंस है वो विजिबल हो जाएंगे, लाइक एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन सी डेट से आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है ये कंप्लायंस, बिल फ्रॉम प्लेस, आपका जो बिजनेस है वो कौन सी लोकेशन पे बेस्ड आउट है, डिफॉल्ट पीरियड ऑफ द इनवॉइस रिपोर्ट्स। सो ये हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिफॉल्ट पीरियड है इनवॉइसिंग रिपोर्ट का विद इन प्रोडक्ट, हम जितने डेज हम रखेंगे उतना डिफॉल्ट पीरियड मिलेगा, अदरवाइज हम ऑल्ट F2 के साथ चेंज कर सकते हैं जो पीरियड्स है जिस भी रिपोर्ट को हम एक्सेस करना चाहते हैं। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड ई-वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस। अगर किसी पर्टिकुलर वाउचर के लिए ई इनवॉइस के साथ ई-वे बिल का कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड है तो आप इस ऑप्शन को यस करके
ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसको भी हमने अभी यस रखा है एंड जस्ट अबाउ ई इनवॉइस अप्लीकेबल यहाँ पे हमने यस किया है। इसके जस्ट ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस। अगर मैं इसको भी यहाँ पे यस करता हूँ देन जो ई वे बिल का चालान होता है, जो हमें हमारे जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हमें चालान ऐड करना होता है ई वे बिल का। तो अगर मैं इसको भी यस करता हूँ तो मुझे ई वे बिल का जो चालान है वो भी विद इन प्रोडक्ट ही निकल आए। विद इन प्रोडक्ट ही मैं उसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ। मुझे पोर्टल पे टैली टू पोर्टल, पोर्टल टू ट्रेवल ऐसे ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। सारी जो रिक्वायरमेंट है वो विद इन प्रोडक्ट ही हमारी फुलफिल हो जाएंगी। सो एक वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे टैली से हम रेगुलर इनवॉइस को ई इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम सिंगल इनवॉइस अपलोड देखते हैं। सिंगल इनवॉइस अपलोड, सबसे पहले हम यहाँ पे पार्टी ऐड करते हैं। सो मांजरेकर एंड सन्स के साथ एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा। हमने यहाँ पे स्टेट एंड पिन कोड सारी चीज़ें चेक किया। चेक करने के बाद हमने आइटम ऐड किया। आइटम कौन से गोडाउन से जा रहा है, गोडाउन अगर दूसरी लोकेशन पे है तो हमें वो भी चेक करना है ड्यूरिंग द इनवॉइस। क्वांटिटी ऐड करने के बाद इस पे कौन सा जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है ट्रांजेक्शन पे, वो जीएसटी हम डिफाइन करेंगे। सो ये आईजीएसटी ट्रांजेक्शन है। इसके बाद प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, और यहाँ पे मुझे बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस दोनों डिफाइन करने हैं। अब बिल टू प्लेस कौन सा हुआ और शिप टू प्लेस कौन सा हुआ? बिल टू प्लेस जहाँ पे मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है, एंड शिप टू प्लेस जहाँ से मेरा स्टॉक मूव हो रहा है। लेट्स सपोज मेरा बिजनेस दिल्ली में रजिस्टर्ड है एंड जो मेरा शिप टू प्लेस जहाँ पे मेरा गोडाउन है आउटसाइड दिल्ली है, तो मुझे बिल टू प्लेस दिल्ली डिफाइन करना पड़ेगा एंड शिप टू प्लेस जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरा गोडाउन बेस्ड आउट है जहाँ से स्टॉक मूवमेंट हो रहा है वो शिप टू प्लेस में मैं डिफाइन करूंगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि ई इनवॉइस डिटेल्स एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे ब्लैंक है, एक्नॉलेजमेंट डेट भी यहाँ पे ब्लैंक है एंड आईआरएन नंबर भी ब्लैंक है क्योंकि अभी इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुआ है। सो जैसे ही हम आगे मूव करते हैं, मैंने इस वाउचर को सेव किया। सेव करने के बाद मुझे मैसेज मिल रहा है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। सो यहाँ पे मुझे ई इनवॉइस के जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। सो जैसे ही हमने अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड किया, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो टैली ये सारा डेटा जो प्रोसेस अभी हमने देखा था वो सारा प्रोसेस मतलब विद इन सेकेंड सारा प्रोसेस होता है कि ये डेटा आईआरपी पोर्टल पे अपडेट होता है, आईआरपी पोर्टल से डुप्लीकेसी चेक होती है एंड वहाँ से एक उस पर्टिकुलर वाउचर को एक आईआरआर नंबर एलोकेट हो जाता है एंड आईआरआर नंबर का जो कॉम्बिनेशन है क्यूआर कोड वो भी आपके इनवॉइस के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटस देख पा रहे हैं इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली, द डिटेल्स आर अपडेटेड इन द ट्रांजेक्शन। जो वाउचर है उसमें जो डिटेल्स है इनवॉइस से रिलेटेड वो अपडेट हो गई। सो हम उस पर्टिकुलर वाउचर को ओपन करके देखते हैं इन प्रीव्यू एंड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्यूआर कोड एंड आईआरआर नंबर दोनों यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो इट मीन्स कि जो मेरा रेगुलर इनवॉइस है वो इनवॉइस में कन्वर्ट हो गया एंड इस जो इनवॉइस की डिटेल्स है वो रजिस्ट्रार जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार पोर्टल है वहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड हो गई हैं। जो मेरा बायर है उसको विद इन सेम टाइम उनके पोर्टल पे भी ये डिटेल्स अपडेट हो गई हैं। उनका जीएसटीआर तो भी अपडेट हो गया। सो हमने देखा कि सिंगल इनवॉइस अपलोड कैसे होता है। अब इसमें एक चीज देखने वाला था कि एक हमने यूजर क्रेडेंशियल्स यूज किया कि ये क्रेडेंशियल्स कौन से हैं। अब ये इनवॉइस के क्रेडेंशियल्स हैं जो हमारा इनवॉइस पोर्टल जब हम लॉगिन करते हैं, ये वो क्रेडेंशियल्स हैं या कोई डिफरेंट क्रेडेंशियल्स है। तो ये क्रेडेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। ये क्रेडेंशियल्स हमें जब हम एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन को अडॉप्ट करेंगे तो हमें ई इनवॉइस पोर्टल पे विजिट करना है, वहाँ पे एपीआई रजिस्ट्रेशन करना रहता है। जब हम एपीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें एक क्रेडेंशियल्स जनरेट करने होते हैं, वो क्रेडेंशियल्स हम टैली में यूज करते हैं। तो वो क्रेडेंशियल्स हम समझते हैं कि वो क्रेडेंशियल्स कैसे बनाने हैं, कौन सी साइट पे विजिट करना है। सो उसके लिए ये ई इनवॉइस पोर्टल है। सो हम कस्टमर का डायरेक्टली कोई डेटा यूज नहीं कर सकते, तो ये डेमो है बेसिकली। तो यहाँ से समझते हैं कि कैसे हम हमारे ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन एपीआई रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे होम पेज का ये बेसिकली पिक्चर है। यहाँ पे एपीआई रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में हमें एंटर करना है। सो एपीआई रजिस्ट्रेशन सेंटर में जब हम एंटर करेंगे, वंस यू क्लिक एपीआई रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यूजर क्रेडेंशियल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट एपीआई यूजर, यहाँ पे एक एडिशनल फीचर है जिसको हम
एंटर करेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे एक OTP आपको रिसीव होगा, एंड वंस यू एंटर द OTP देन आपके पास जो नेक्स्ट विंडो होगा यहाँ पे API रजिस्ट्रेशन। इसमें आप डायरेक्टली करना चाहते हैं या थ्रू GST सुविधा प्रोवाइडर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है थ्रू GSP। एंड GSP सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो है उसमें उसमें हमें सेलेक्ट योर GSP सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमें GSP सेलेक्ट करना है, एंड इसके बाद यूजर नेम में API अंडरस्कोर आपका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहेगा, एंड इसके बाद आप अपना जो रेगुलर जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, यूजर नेम है, उनको ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपने अपना यूजर नेम यहाँ पे एंटर किया, एंड इसी के साथ आप अपना पासवर्ड भी यहाँ पे सेट करेंगे, एंड पासवर्ड सेट करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगा कि योर API रजिस्ट्रेशन हैज कंप्लीट, एंड तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मिल जाते हैं। उन क्रेडेंशियल्स को हमें टैली में यूज करना है व्हेन वी आर यूजिंग टू जनरेट इनवॉइस एंड ई-वे बिल। अगर किसी कंप्लायंस किसी वाउचर के लिए इनवॉइस एंड ई-वे बिल दोनों कंप्लायंस यूज होने हैं, तो भी हमें कोई डिफरेंट क्रेडेंशियल्स यूज नहीं करने, सेम क्रेडेंशियल्स के साथ हम दोनों कंप्लायंस को मीट आउट कर सकते हैं, ई-वे बिल एंड इनवॉइस। सो अगेन हम PPT पे मूव करते हैं। सो सिंगल इनवॉइस अपलोड हमने देखा, बट हर बिजनेस का अपना नेचर ऑफ वर्किंग है। कुछ बिजनेसेस में क्या होता है कि जब कोई भी इनवॉइस जनरेट हो रहा है तो उन बिजनेसेस की प्रैक्टिस होती है कि सेम टाइम पे हम उसको इनवॉइस में कन्वर्ट कर दें, बट ड्यूरिंग द डे बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्रेशंस, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं इनवॉइसेस में, लाइक कोई आइटम्स न्यू ऐड हो रहा है, किसी आइटम का क्वांटिटी ऐड हो रहा है, किसी आइटम के प्राइस में रिवीजन हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ड्यूरिंग द डे। तो इस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए हम बल्क इनवॉइस अपलोड का जो ऑप्शन है उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, जब भी हम इनवॉइस रेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम उसका इनवॉइस जनरेट नहीं करेंगे। इवनिंग टाइम पे जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उस टाइम पे जितने भी इनवॉइसेज हैं ड्यूरिंग द डे जो जनरेट हुए हैं, जहाँ पे ऑल्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट्स ऑल मतलब अपडेट हो चुकी हैं, तो सिंगल गो में हम इनवॉइसेज को सेलेक्ट करेंगे एंड उनको रेगुलर इनवॉइस से इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। सो बल्क अपलोड ऑप्शन को हम गो थ्रू करते हैं। सो उसके लिए लेट्स सपोज कि हमने रेगुलर डेज के इनवॉइस हमने बना लिए हैं, और बनाने के बाद हमें गो टू पे जाना है। गो टू ऑलरेडी आप यूज करते हैं, एंड गो टू में आपको सिर्फ ई इनवॉइस टाइप करना है, या फिर आप स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाके इनवॉइस की रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बट जो सिंपल वे है, आप सिर्फ गो टू में जाइए। गो टू में सिर्फ आपको कुछ कीवर्ड्स, जिस भी रिपोर्ट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, कीवर्ड्स एंटर कीजिए। तो हमने ई इनवॉइस यहाँ पे टाइप किया और ई इनवॉइस की रिपोर्ट्स हमारे सामने विजिबल है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है रिजेक्टेड बाय इनवॉइस सिस्टम। यहाँ पे 2 इनवॉइसेज है जो किसी भी वजह से, कोई भी इनका रीजन रहा होगा, वो रिजेक्ट हुए हैं IRP पोर्टल की तरफ से, एंड जो पेंडिंग है फॉर जनरेशन यहाँ पे 4 इनवॉइसेज हैं जो अभी पेंडिंग में है, जिनका इनवॉइस अभी रेज होना है। थर्ड ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं वाउचर चेंज आफ्टर IRN जनरेशन। सो ये एक डिफरेंट पैरामीटर है कि IRN जनरेशन के बाद वाउचर्स में कुछ चेंजेस हुआ है, एंड IRN अपडेटेड मैनुअली, कितने IRN है जो मैनुअली अपडेट। तो यहाँ पे एक रिपोर्टिंग पार्ट है, वो भी हम देख पा रहे हैं कि कितने IRN अभी रिजेक्ट हुए, कितने फॉर जनरेशन की क्यू में है, कितने हैं जहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, ऑल्ट्रेशन हुए आफ्टर इनवॉइस जनरेशन। सो अभी हम बल्क अपलोड के बारे में देख रहे हैं। तो फॉर जनरेशन कितने पेंडिंग है उसके साथ गो थ्रू करते हैं। सो हमें सिंपली एक्सचेंज में जाना है, एंड जो इनवॉइसेस पेंडिंग है वो यहाँ पे एक्सचेंज में आके पार्क रहते हैं। तो हम जितने इनवॉइसेस का इनवॉइस कन्वर्ट करना चाहते हैं एट द टाइम, उनको सेलेक्ट करेंगे, एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सेंड बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमसे टैली आस्क करेगा यूजर क्रेडेंशियल्स जो हमने API रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किए हैं। सो वंस वी एंटर द क्रेडेंशियल्स,
सेम टाइम पे जो डिटेल्स हैं वो IRP पोर्टल्स पे अपडेट होंगी एंड IRP पोर्टल उन दोनों इनवॉइसेज के लिए IRR नंबर एंड QR कोड इशू कर देगा अगर जो डिटेल्स हमने एंटर की हैं वो सब अप टू डेटेड एंड क्लियर है। देन सो हम देखते हैं ई इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली। सिर्फ जो दो हमने इनवॉइसेज सेलेक्ट किए थे उन दोनों का इनवॉइस जनरेट हो गया। इसके बाद अब थर्ड जो मेरा वाउचर जो पेंडिंग है मैंने उसका भी इनवॉइस जनरेट करना है। तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट जो टू इनवॉइसेज जिनका हमने इनवॉइस जनरेट किया है तो मुझे यूजर क्रेडेंशियल्स यूज करने पड़े थे। एंड जब थर्ड वन के लिए मैंने रिक्वेस्ट रेज किया टेली से तो मुझे ई इनवॉइस के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ऐड नहीं करने पड़े। तो एज पर डिपार्टमेंट जो लो है कोई भी GSP टैक्स पेयर का जो API रजिस्टर्स के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टैली में जो सोल्यूशन हमें मिलता है 6 आवर्स के लिए टैली आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको सेव करके रखेगा। लाइक कि आपने मॉर्निंग 9 AM अपने टैली स्टार्ट किया और आपने एक इनवॉइस जनरेट किया तो नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए जो आपके क्रेडेंशियल्स है वो टैली में सेव रहेंगे। आपको बार बार क्रेडेंशियल्स यूज नहीं करने, सिर्फ आप कमांड दीजिए कि आप एक रेगुलर इनवॉइस को इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो सेम टाइम पे विदाउट क्रेडेंशियल्स आपको ऐड की एक कमांड IRP पोर्टल पे हिट होगा और वहां से जो आपका रेगुलर इनवॉइस है वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बल्क अपलोड के बाद हम देखते हैं कि जो इनवॉइसेज है जहाँ पे ई इनवॉइस के साथ ई-वे बिल भी एप्लीकेबल है तो इसको कैसे मीट आउट करेंगे, क्योंकि हमने सिंगल इनवॉइस अपलोड देख लिया। नेचर ऑफ बिजनेसेस के लिए बल्क अपलोड सूटेबल है तो बल्क अपलोड के थ्रू गो कर सकते हैं। देन ई इनवॉइस के साथ अगर ई-वे बिल भी एप्लीकेबल है तो कैसे कंप्लायंस को मीट आउट करेंगे। सो एक वाउचर पोस्ट कर रहे हैं हम जहाँ पे सबसे पहले हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे एंड पार्टी सेलेक्ट करने के बाद जो पार्टी की डिटेल्स है वो हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमने आइटम ऐड किया एंड आइटम का वैल्यू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50,000 से अबव है। अब जैसे ही 50,000 से अबव है तो यहाँ पे टैली में हम देख पा रहे हैं कि प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स ऑब्लिक ई इनवॉइस डिटेल्स। तो यहाँ पे मुझे ई इनवॉइस का डिटेल्स भी ई इनवॉइस के साथ ई-वे बिल का डिटेल भी टैली आस्क कर रहा है एंड एक नया विंडो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स सेज टैक्सेबल। तो इस वाउचर के लिए हमें ई-वे बिल की डिटेल्स इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले जो सब टाइप है वो सप्लाई है हमारा। डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस हम जनरेट कर रहे हैं। मेलिंग नेम में जिस पार्टी के साथ मेलिंग नेम में हमारा जो कंपनी की डिटेल्स है वो हमें चेक करना है। एड्रेस हमें डिफाइन करना है। पिन कोड हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए। किस प्लेस से हम बिजनेस कर रहे हैं एंड स्टेट, ये चारों चीज़ें हम चेक कर लेंगे। इसके बाद कंसाइनी की डिटेल जिनके साथ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ जो हमारे बायर हैं उनका भी सेम डिटेल्स हमें चेक करना है। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऐड करना है कि इस पिन कोड से 560001 से 56004041 का डिस्टेंस क्या है। तो जो भी सजेस्टेड डिस्टेंस है वो हमें ऐड कर देना है। अगर डिस्टेंस हमें अभी ध्यान नहीं कि कितना इस पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस है तो ई-वे बिल की साइट पे जाके हम पिन कोड टू पिन कोड जो डिस्टेंस है वो सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ पे जो डिस्टेंस है मतलब एक बार हमें टैली में ऐड करना है। नेक्स्ट टाइम के लिए टैली उस पिन कोड से पिन कोड का जो डिस्टेंस है उसको स्टोर करके रखेगा एंड हमें बार बार इस तरह की जो डिस्टेंस ऐड करने की जो प्रैक्टिस है वो नहीं करनी रहेगी। टैली उस डिस्टेंस को ऐड करके रखेगा अपने डेटाबेस में। इसके बाद दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट कि हम जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक लोकेशन से सेकंड लोकेशन पे वो किसी ट्रांसपोर्टर से कर रहे हैं तो उस केस में हमें ट्रांसपोर्टर का नेम एंड ट्रांसपोर्टर का आईडी, ट्रांसपोर्टर का आईडी उसका GST नंबर होता है तो ट्रांसपोर्टर का नेम एंड उसका आईडी दोनों डिफाइन करने हैं। और अगर हम खुद के व्हीकल से स्टॉक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो पार्ट बी की डिटेल्स को हमें यहाँ पे ऐड करना है। एंड इन केस अगर हम ट्रांसपोर्टर के यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टर का नेम एंड ट्रांसपोर्टर का आईडी, और अगर वो हमें व्हीकल डिटेल्स प्रोवाइड करता है तो व्हीकल डिटेल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम ट्रांसपोर्टर के साथ ई-वे बिल डिटेल्स ऐड करके उसका ई-वे बिल जनरेट कर लेते हैं
एंड ट्रांसपोर्टर वहाँ पे व्हीकल डिटेल जो पार्ट बी की डिटेल्स है वो मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि वो ऐड करते हैं अपने एंड से। तो दोनों केसेस में हम जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ व्हीकल है चाहे ट्रांसपोर्टर के साथ है, तो सजेस्टेड जो डिटेल्स है वो हमें ऐड करनी है। सो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्टर का नाम और उसका ट्रांसपोर्टर का आईडी ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टर का जो व्हीकल नंबर है वो भी अवेलेबल है, हमने ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर भी ऐड कर दिया। एंड व्हीकल टाइप ऐड करने के बाद अगेन ई इनवॉइस की डिटेल्स अब हमें ऐड करनी है कि बिल टू प्लेस कौन सा है एंड शिप टू प्लेस कौन सा है। दोनों ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ई इनवॉइस एंड ई वे बिल क्या हम दोनों की डिटेल्स सिंगल गो में सेंड करना चाहते हैं, देन यस, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें ऐड करना है। एंड यूजर नेम पासवर्ड ऐड करने के बाद ये जो डिटेल्स है ये IRP पोर्टल पे अपडेट होंगी एंड वहां से हमें इनवॉइस एंड अब यहाँ पे देखिए आपको मैसेज मिल रहा है इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। इस पर्टिकुलर वाउचर के लिए इनवॉइस एंड ई वे बिल दोनों जनरेट हो गए। अब हम प्रीव्यू में जाके देखते हैं कि क्या डिटेल्स ऐड हो गई हैं हमारे वाउचर पे। सो प्रीव्यू, एंड प्रीव्यू को मैं जूम करके देखता हूँ तो यहाँ पे IRN नंबर ऐड हो गया है एंड QR कोड भी अपडेट हो गया है। इसके साथ जो ई वे बिल नंबर है वो भी मेरे ट्रांजेक्शन के साथ अपडेट हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पे जब हम देखें तो ई वे बिल का जो चालान है वो भी आपके इनवॉइस के साथ ही प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए हमें अलग से पोर्टल पे जाके वहाँ पे सारी डिटेल्स अपडेट करके ई वे बिल का चालान निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी विद इन प्रोडक्ट ही फुलफिल हो जाती है। एंड जो IRN की डिटेल्स है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये जो हमारा इनवॉइस है उसमें भी अपडेट होगी। तो पेज अप करके हम देखते हैं, यहाँ पे ई वे बिल नंबर ऐड हो गया है मेरा ई वे बिल सेक्शन में। एंड अगर मैं इनवॉइस के केस में देखूं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRN नंबर और किस डेट पे इस इनवॉइस का IRN नंबर जनरेट हुआ, ये तीनों चीजें यहाँ पे इनवॉइस में भी अपडेट होंगी। सो इनवॉइस में जैसा कि मिहिर जी ने भी बताया कि इनवॉइस में कोई भी डिटेल हम ऐड कर सकते हैं, बट वहाँ पे किसी तरह का कोई ऑल्ट्रेशन का जो कमांड है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप ऑल्ट्रेशन करेंगे तो आपके मिसमैच में दिखेगा कि आपने किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में, इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में कुछ जो डिटेल इनवॉइस में है और जो आपके पोर्टल पे डिटेल जो अपडेट है वहाँ पे मिसमैच दिखाएगा। एंड टैली में भी रिपोर्टिंग पार्ट में हम देख सकते हैं कि कितने वाउचर्स हैं जहाँ पे इनवॉइस किसी सर्टेन डिटेल्स के साथ आपने जनरेट किया है और उसके बाद क्या क्या उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो मिसमैच का जो रिपोर्ट्स है उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन से वाउचर में कुछ चेंजेस हुए हैं। इनवॉइस रिपोर्ट टू गेट बर्ड आई व्यू। तो इनवॉइस में अलग अलग बकेट में हम देख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एक वीडियो के माध्यम से भी देखा कि कितने वाउचर हैं जो IRP पोर्टल से कैंसिल हो गए हैं, कितने वाउचर हैं जो पेंडिंग फॉर जनरेशन है, क्यू में है, एंड कितने वाउचर हैं जहाँ पे इनवॉइस जनरेट होने के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं, एंड कितने वाउचर हैं जो आपने कैंसिल किए हैं। तो अगर कैंसिलेशन भी किसी वाउचर में किसी डेटा एंट्री की मिस्टेक हो जाती है या आपने किसी भी वजह से उस पर्टिकुलर वाउचर को कैंसिल करना है तो विद इन सर्टेन टाइम, विद इन 24 आवर आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब कुछ क्वेरीज है। अपडेट IRN फॉर द इनवॉइसेस जनरेट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। सो लेट्स सपोज कि किसी भी वजह से मैंने टैली से इनवॉइस जनरेट नहीं किया या टैली से ई वे बिल जनरेट नहीं किया, तो क्या मैं वो डिटेल्स फेच कर सकता हूँ टैली में? लेट्स सपोज मैंने जैसे मिहिर जी ने बताया कि मल्टीपल ऑप्शंस है जिनके थ्रू हम ई इनवॉइस का जो कंप्लायंस है वो मीट आउट कर सकते हैं। तो आपने किसी और सोर्स से इस रेगुलर इनवॉइस को इनवॉइस में कन्वर्ट किया, वहां से IRN पर QR कोड जनरेट किया, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि टैली में कोई ऐसा मुझे टूल मिल जाए कि मैं जो पोर्टल पे डिटेल्स है उनको अपने इनवॉइस पर अपडेट कर सकूं? सो यस, आप सिर्फ एक कमांड है गेट IRN इन्फो, जब आप इनवॉइस की रिपोर्ट में जाएंगे, किसी भी इनवॉइस को ओपन करेंगे वहां पे, तो किसी अदर सॉफ्टवेयर से किसी भी अदर टूल से आपने
ई इनवॉइस जनरेट किया तो उसकी डिटेल्स को आप विद इन टैली अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड, IRN कैंसिलेशन ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री, डेटा एंट्री मिस्टेक एंड कैंसिलेशन की ऑर्डर। सो अगर ऐसा कोई हमें टास्क परफॉर्म करना है या फिर ऐसा कोई कमांड रन करना है तो विद इन प्रोडक्ट हम कैंसिलेशन का कमांड भी रन कर सकते हैं। सो कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए हमें कैसे करना रहेगा वो एक बार हम चेक करते हैं। सो सिंपली मुझे किसी भी रिपोर्ट को एक्सेस करना है तो गो टू के साथ मैंने उसके रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप किए तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये जो ई इनवॉइस की रिपोर्ट है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे रिपोर्ट ओपन होने के बाद कौन से वाउचर को हम कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, हमने उस वाउचर को सेलेक्ट किया एंड टैली में हम उसको मार्क एज कैंसिल करेंगे। मार्क एज कैंसिल करने के बाद सिंपली जो मार्क एज एरर कैंसिल्ड हो गया एंड इसको ऐड करके हमें जो इसका रीजन है कि हम किसको क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं वो हमें ऐड करना रहेगा। एंड हमें एक इनवॉइस ओपन किया एंड अपडेट कैंसिलेशन में इसका रीजन क्या है कि हम इसको क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो डुप्लीकेट एंट्री, डेटा एंट्री मिस्टेक, ऑर्डर कैंसिलेशन, आई थिंक ये 3 ही पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, डेटा एंट्री मिस्टेक एंड उसके रिमार्क्स में जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी उसका करेक्ट रीजन है। कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया डेटा एंट्री मिस्टेक एंड रिमार्क्स ऐड करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया। अब जब हमने इसको सेव किया तो ये जो कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट है ये एक्सचेंज में पार्क हो गई है एंड इसके बाद हमें एक्सचेंज पे विजिट करना है एंड एक्सचेंज में हम सेंड फॉर इनवॉइसिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक वाउचर जो है वो कैंसिलेशन के लिए पोस्ट हुआ है एंड जैसे ही हम यहाँ से सेंड करेंगे तो ये जो वाउचर है ये आपके IRP पोर्टल, जो आपका ई इनवॉइस पोर्टल, वहां से भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पोर्टल से आपका इनवॉइस कैंसिल हो गया है, टैली में आपने कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया है। उसके बाद सिंपली हमें उस इनवॉइस को ओपन करना है एंड ऑल टेक्स्ट के साथ हमें उस इनवॉइस को कैंसिल कर देना है ताकि वो जो इनवॉइस है उसका जो इनवॉइस नंबर है वो आपके आगे की सीरीज को हैम्पर ना करे, ताकि उस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर को टैली एज ए कैंसिल मार्क कर दे अपने जो डेटाबेस में है। सो इस तरह से हम कैंसिलेशन के टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ई इनवॉइस से रिलेटेड और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। ई इनवॉइस में कुछ ऐसा ज़्यादा ऑल्ट्रेशन अमेंडमेंट्स का तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ हम जनरेशन एंड कैंसिलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, प्लस उसके साथ उसकी जो रिपोर्टिंग है, वास्ट रिपोर्टिंग हमें देखने को मिलती है। बट हाँ, ई वे बिल के केस में बहुत सारे ऐसे टास्क हैं। लेट्स सपोज आपने ई वे बिल जनरेट किया एंड उसके बाद आपको पार्ट बी की डिटेल्स ऐड करनी है या ई वे बिल को एक्सटेंड करना है या ई वे बिल को कैंसिल करना है, तो बहुत सारे ऐसे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ई वे बिल जनरेशन का ही सॉल्यूशन विद इन प्रोडक्ट मिलता है या फिर ईवी बिल के चालान का प्रिंट का सॉल्यूशन ही विद इन प्रोडक्ट मिलता है। उससे रिलेटेड जितने भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे वो आप उसकी टाइम एक्सटेंड को लेके पार्ट बी की डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं, किसी अदर टूल से आपने ईवी बिल जनरेट किया उसकी डिटेल्स को टैली में फेच करना चाहते हैं, तो सभी टास्क को आप विद इन प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं अगर आपने किसी और टूल से भी जनरेट किया है। एंड इसके साथ यहाँ पे status.tellysolutions.com पे हम विजिट करके चेक कर सकते हैं कि जो GSP के साथ API इंटीग्रेशन है IRP पोर्टल के साथ, अगर वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कंसर्न आपको फेस हो रहा है, लाइक सर्विस डिसरप्शन या अंडर मेंटेनेंस है जो जो सॉल्यूशन है, या फिर जो जो NIC पोर्टल है वो अंडर मेंटेनेंस है, तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। status.tellysolution.com पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे सर्विसेज नेम आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ब्राउजर रिपोर्ट सर्विस स्टेटस अगर एक्टिव है तो वो आप इजीली यूज कर पाएंगे। रिमोट एक्सेस सर्विस, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, ई इनवॉइस सर्विसेज। सो अगर GSP और NIC पोर्टल के इंटीग्रेशन में या फिर जो ब्रिजिंग
की जो बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी तरह का कोई सर्विस डिसरप्शन है या मेंटेनेंस है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करने को मिल जाएगा। एंड जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है, अगर एनआईसी पोर्टल की तरफ से पोर्टल डाउन है या फिर किसी तरह का वहाँ पे कोई मेंटेनेंस चल रहा है, कोई अपडेशन हो रहा है, तो अगर वहाँ पे आपको एक्टिव है तो वो सर्विसेज एक्टिव है। अगर वहाँ पे आपको सर्विस डिसरप्शन का साइन देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं पोर्टल अपडेट हो रहा है या वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। तो इजीली हम चेक कर सकते हैं अगर हमें यूज करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सो यू विल नेवर नीड टू गो आउट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इनवॉइसिंग। सो इनवॉइस का जो कंप्लायंस है, उसको यूज करने के लिए आपको किसी डिफरेंट टूल को या फिर अलग किसी प्रोडक्ट में जाके यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टैली यूज करते हैं तो विद इन प्रोडक्ट इतना सिंप्लीफाइड और सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको यूज करके अपने कंप्लायंस को फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ ई-वे बिल कंप्लायंस भी हमने देखा। सो ई-वे बिल एंड इनवॉइस दोनों कंप्लायंस को हम इजीली मीट आउट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट पार्ट में, इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हमने डिटेल्स में देखा कि कैसे हम आईआरएन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे हम सिंगल अपलोड करेंगे, बल्क अपलोड, कैंसिलेशन, ई-वे बिल के साथ अगर किसी वाउचर को पोस्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सारे जो एस्पेक्ट हैं इनवॉइस एंड ई-वे बिल के, वो हमने गो थ्रू किए। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में ऐड कीजिए। सभी क्वेरीज को हम कोशिश करेंगे कि इन राकेश दिस सेशन और आफ्टर दिस कुछ सेशन एड्रेस करें। राकेश कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इनबॉक्स में है हमारे पास। लाइक द Sure. क्वेश्चन फ्रॉम श्रद्धा जी इज इन टैली हाउ वी कैन डाउनलोड HSN वाइज रिपोर्ट। In Tally, how we will download HSN wise report. Yeah. So simply हम HSN रिपोर्ट को मैं श्रद्धा जी से कहूंगा कि आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऐड कर दीजिए। हम 1-to-1 कनेक्ट करके आपको ये रिपोर्ट्स कैसे एक्सेस करना है वो बता देंगे। कॉलमनार रिपोर्ट एक रिपोर्ट बनता है, तो अभी वो मतलब विजिबल करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डेटाबेस भी उतना चाहिए। सो 1-to-1 हम एक बार आपको चेक करेंगे एंड इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। Perfect. कॉलमनार रिपोर्ट से हम ये एक्सेस कर सकते हैं। Perfect. So, Rakesh, what I suggest you can just have a look to the chat window. एक बार quickly देख लो. If anything is to be answered based on Sure. the recent session, if something is there, you can answer it over the session. Else, I request all the participants, if any of the question is unanswered, please drop us a text. We will revert you back. We will ensure that all the queries raised during the session are answered. Post this session, we will share the recording also, as well as we will reach out to you individually to discuss in detail whatever is pending from our end. So, अपनी कुछ क्वेरीज हैं तो हम एक बार उनको एड्रेस कर लेते हैं। आई थिंक Yeah, sure. तो विक्की जी का क्वेरी है कि so cancellation of invoice will be performed 24 hours when invoice generated. So definitely sir, within 24 hours आप उस जनरेटेड इनवॉइस को कैंसिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड जैसा कि हमने प्रोडक्ट में देखा कि हम सिंगल इनवॉइस भी अपडेट कर सकते हैं और बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। एंड आराध्या जी का क्वेरी है, हाउ कैन आई कैंसिल ई-वे बिल फ्रॉम टैली। सो ई-वे बिल को भी हम टैली से कैंसिल कर सकते हैं मैम। सिंपल प्रोसेस है। आपको ई इनवॉइस जैसे हमने रिपोर्ट एक्सेस किया, सिंपली गो टू में जाना है, ई-वे बिल रिपोर्ट को ओपन करना है। जिस भी पर्टिकुलर वाउचर के अगेंस्ट में आपको ई-वे बिल कैंसिल करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है एंड राइट साइड में आपको एक कमांड दिखेगा कैंसिल ई-वे बिल, तो आपको उसको परफॉर्म करना है। वहां से आप ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने एक वाउचर के साथ ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस दोनों को जनरेट किया है एंड उसका आप कैंसिलेशन का कमांड परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ई-वे बिल के कैंसिलेशन का कमांड परफॉर्म करना है, उसके बाद ई इनवॉइस को कैंसिल करना है। एंड दोनों को कैंसिल करने के बाद आप उस वाउचर को भी टैली से ऑल टैक्स करके कैंसिल कर दें। अदरवाइज जो नेक्स्ट सीरीज है वहां पे आपको जो ई इनवॉइस में जो मिसमैच का जो हमें देख रहे थे वो आपको देखने को मिलेगा ऐसे एरर्स ना। तो इसके साथ जैसे ही आप ई-वे बिल और इनवॉइस कैंसिल करेंगे, साथ ही आप उस पर्टिकुलर वाउचर नंबर को भी कैंसिल कर दीजिए, ओपन कीजिए एंड सिंपली ऑल टैक्स परफॉर्म कीजिए, आपका वाउचर कैंसिल हो जाएगा। सो कुसुम जी का क्वेरी है, इफ वी वांट चेंज ट्रांसपोर्टर आईडी आफ्टर वी पुटिंग इट रॉन्ग इन फर्स्ट टाइम। तो आप ई-वे बिल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे आपको ट्रांसपोर्टर आईडी चेंज करना है
तो ट्रांसपोर्टर आईडी चेंज करने के लिए आपको पहले ईवे बिल का जो हिस्ट्री है वहां से ट्रांसपोर्टर आईडी को डिलीट करना रहेगा। उसके बाद आप दोबारा वो जो 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 विंडो है जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर आईडी ऐड करते हैं वो ब्लैंक हो जाएगा। अगेन आप उसको ऐड करके अपडेट कर सकते हैं पोर्टल पे, एंड सेम डिटेल्स आपके पोर्टल पे भी अपडेट होगी। राधा जी का क्वेरी है, प्लीज रिपीट ई-इनवॉइस कैंसिलेशन फ्रॉम टैली। सो मैम, रिकॉर्डेड सेशन आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, एक मेल आएगा जहाँ पे आप इसको अगेन चेक कर सकते हैं। हाउ कैन आई प्रिंट ओनली ई-वे बिल विदाउट ई-इनवॉइस इन टैली प्राइम? सो धीरन झा जी का क्वेरी है कि मे बी उनके लिए ई-इनवॉइस का कंप्लायंस अप्लीकेबल नहीं है। तो ई-इनवॉइस के अगर आपके लिए कंप्लायंस अप्लीकेबल नहीं है तो आप ई-वे बिल भी विद इन प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं ई-वे बिल के चालान। जैसे हमने ई-इनवॉइस पोर्टल पे एपीआई रजिस्ट्रेशन किया, वैसे ही आपको ई-वे बिल पोर्टल पे जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना है। एंड जीएसपी रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको एक क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। वो क्रेडेंशियल्स को आप यूज करके टैली से ई-वे बिल का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन, क्रिएशन, अमेंडमेंट्स, सारी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो प्लीज लुक फॉर माय क्वेरी और पिन कोड प्लीज। सो अगर पिन कोड से रिलेटेड कुसुम जी आपको कुछ एरर आ रहा है तो आप ई-वे बिल साइट पे जाके आप पिन कोड टू पिन कोड डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। एंड वहां से जो भी पिन कोड टू पिन कोड जो डिस्टेंस आपको मिलेगा उसको आप एक बार प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, नेक्स्ट टाइम से डिस्टेंस से रिलेटेड एरर आपको नहीं देखने को। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पर्सनल मतलब आपकी क्वेरी रेज नहीं हुई तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर ऐड कर दीजिए, हमारे यहाँ से आपको कनेक्ट करेंगे हम, एंड आपकी जो भी क्वेरी है उसको कोशिश करेंगे विद इन टाइम फ्रेम वो सॉर्ट आउट। आराध्या जी का क्वेरी है, कैन आई एक्सटेंड ई-वे बिल वैलिडिटी डेट? यस मैम, आप टैली से ही परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने बात की कि ई-वे बिल से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप टैली से परफॉर्म कर सकते हैं। सो कुसुम जी आपको हमारे यहाँ से कनेक्ट करेंगे एंड जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो आई थिंक अभी और क्वेरीज नहीं है। सो Thank you so much, Rakesh. Thank you for sharing all the valuable inputs and addressing all the queries of customer and all the prospects here. So thanks once again to the entire audience for joining this insightful session. And with this note, we are ending today's session. I hope the same was insightful and helpful to you all. Have a great day ahead and a healthy and a prosperous new year ahead. Thank you so much. Take care. Goodbye.